Assalamu alaikum, dear students. During this meeting, I'm going to discuss chapter number 12, which is about the recognizing employee contribution with pay. These are the learning objectives of this particular chapter. First of all, discuss how pay influences individual employees and describe three theories that explain the effect of the compensation on individuals. Then describe the fundamental pay program for recognizing employee contribution to the organization's success. Then list the advantages and disadvantages of the pay programs. Then describe how organizations combine incentive plans in a balanced scorecard. Then we are going to discuss issues related to performance-based pay for executives, then explain the importance of the process issues such as communication and compensation management, and list the major factor to consider in matching the pay strategy to the organization strategy. So first of all, evaluating the pay programs. So how we are going to evaluate the pay program? There are some fundamental questions which can ask when they are evaluating the pay program in the organization. When you are setting up the pay program in the organization, these are some fundamental questions which you need to ask. First of all, what are the costs of the program? If you're introducing a new pay program, so what are the costs entailed for that particular kind of program? What is the expected return in terms of influences on attitude and behavior? What kind of a behavioral and attitude change you are expecting after introducing this kind of the pay program? Does the program fit with the organization human resource strategy and its overall business strategy? So what kind of a context you have, what kind of a culture you have, what kind of a already HR strategies which you are implemented in your organization, does this program fit into that particular HR program? And what might go wrong with the plan in terms of unintended consequences? If the program does not go well, then what are the unintended consequences of that program? So these are some fundamental questions which you need to consider before introducing a program and evaluating the pay program as well. Now the fundamental question is, how does pay influence the individual employee? So pay plans are actually used to energize, direct, sustain, or control the behavior of the current employees. And when we refer to the effect of pay plans, often with a focus on the pay for performance plans on current employee as an incentive effect. That what are the effect of that pay plan on the employees? So this is what we call the incentive effects. And later we are going to introduce the concept of the sorting effect as well. But now I'm focusing on the incentive effect. Incentive का क्या effect जो है वो employees के ऊपर आता है. There are most employees, equity theory can also explain that thing, that the most employees are comparing their pay with the employees in the other organization, in the same organization as well, what I'm getting and what the other person is getting. The equity theory provides this explanation regarding the pay influence on the individual employees. And there are some other theories as well. Three additional more detailed theories also explain the effects of compensation. These are reinforcement theory, expectancy theory, and agency theory. So what do we mean by reinforcement theory? The Thorndike law of effect states that a response followed by a reward is more likely to recur in the future. दैट मीन्स कि अगर आप देखें, फॉर रीइंफोर्समेंट थ्योरी का बेसिक प्रीमिस ये है कि अगर आपको किसी बिहेवियर को रिवॉर्ड किया जाता है तो वो बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स हो जाता है. बस अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो अगर आपको उसके हवाले से प्रमोशन या पे रेज होती है या कोई और किस्म का रिवॉर्ड मिलता है तो वो बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स हो जाता है. By the same token, agar high performance not followed by the reward, it will make less likely to be happen in the future as well. This theory emphasizes the importance of the person's actual experience of the reward. What the person is actually experiencing about that reward, that this theory is basically highlighting this experience. अब आपको रिवॉर्ड जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अगर आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करते हैं, अगर आपको अच्छे ग्रेड मिल जाते हैं तो ये बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स हो जाता है. और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और अगर आपको अच्छे ग्रेड नहीं मिलते तो ये भी बिहेवियर इन्फोर्स हो जाता है कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस जो है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद मुझे ग्रेड्स अच्छे नहीं मिल रहे. अच्छा, another theory is expectancy theory that focus on the link between the reward and behavior and emphasize expected rather than experienced rewards. It focuses on the effects of the incentive.
and the behaviors in that regard, the behavior of the job performance can be described as a function of ability and motivation. तो मोटिवेशन का जो फैक्टर है वो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के हवाले से इन्फ्लुएंस होता है. और मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज द फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड बैलेंस परसेप्शन. एक्सपेक्टेंसी से मुराद ये, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर exerting your effort, does that effort lead to the particular kind of a performance? If you are putting up effort for the preparing of examination, are you confident that you are able to perform in the examination as well? I mean, that is basically the first link, which we call the expectancy. Then the instrumentality. If I perform well, will I get the good grades in the examination? Or if I perform well in the organization, will I get any kind of a pay raise or promotion or bonuses or any other incentive that the person desire for? So that's another thing which we call the instrumentality. And third is about the balance. What is the importance of that final outcome for you? What is the significance of that outcome for you? How much these grades are important for you? So if these grades are highly important for you, then it's positive balance, it's highly significant. If they are not as much important, then it has a low significance. Sometimes the people are also performing in the organization to avoid the negative consequences. They don't want to be demoted. They don't want to be suspended, and they are avoiding the punishments. That's why they're performing in the organization. Sometimes students are also doing these activities. They don't want to fail in the examination. So that is basically negative valence. The negative valence is the basically where the punishment and the fear is driving a person to do that kind of a thing. So that has also been experienced, that is also been expected by some employees in the organization. So that's why this also motivates, fear also motivates, punishment also motivates the person to perform in the organization. The compensation mainly influences instrumentality and perceived link between behavior and the pay. So the perceived link between the behavior and the pay, that in other words, employee will my outcome be better or higher, faster promotion, more autonomy if I perform well, or is performance simply not very relevant to my outcomes? So if you are able to see that yes, it has been linked, my performance has been linked with the reward, then you are highly motivated. If you think that my performance has not been linked with my rewards, then according to this theory, the person is less motivated to perform in the organization. Then there are two kinds of motivation. There are two types of motivation. One is extrinsic motivation, another is intrinsic motivation. देखिए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मैं आपको सिंपल फैक्टर्स बताऊं. मोटिवेशन बाय इटसेल्फ जो कंस्ट्रक्ट जो है वो इंटरनल ही है, लेकिन उसका फोकस एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है. मतलब एक पर्सन मोटिवेट हो रहा है पे से, बेनिफिट से, स्टूडेंट मोटिवेट हो रहा है ग्रेड से, एप्रिसिएशन से टीचर की, तो ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स हैं जो कि उसको मोटिवेट कर रहे हैं. इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो करती है कि दैट यू आर बेसिकली एंजॉइंग द वर्क बाय इटसेल्फ. कोई लर्निंग आपकी हो रही है, आप एंजॉय कर रहे हो उस एक्टिविटी को, तो आपके रिवॉर्ड जो है by itself, by doing that kind of the work, that is the reward by itself for you. Extrinsic incentives generally do not have an adverse effect on the intrinsic motivation. ये दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं. हमारी मोटिवेशन के अंदर एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं, और दोनों फैक्टर्स हमारी मोटिवेशन को इम्पैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. तो बहरहाल आप कुछ सेटिंग के अंदर हो सकता है कि मॉनेटरी इंसेंटिव जो है वो रिड्यूस करते हो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, जैसे एजुकेशन है, लेकिन बाकी सारी सेटिंग के अंदर इट हैज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंट्रिंसिक मोटिवेशन. Then there is another theory which explains how does pay influence individual employee, which we call the agency theory. Agency theory focus on the divergent interests and the goals of the organization stakeholder and the way that employee compensation can be used to align these interests and goals. We cover agency theory in some depth. हम इसको कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखिए, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्न कॉर्पोरेशन का है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. इस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और अनलाइक जैसा पहली अर्ली स्टेजेस ऑफ द कैपिटलिज्म in which the owner and the manager were often the same, now the modern organization have a different modern organizations are different in that regard. Most
stockholders are far removed from the day-to-day operations of the companies. So this separation has an important advantages like mobility of financial capital and diversification of investment risk. It also creates agency cost as well. Interest of the principals, owners, and their agent manager may no longer converge. What may be best for the agents is not the best for the principal, and what may be the best for the principal is not best for the agents. एजेंसी कॉस्ट कहाँ से आती है? एजेंसी कॉस्ट आप देखें, मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन इसकी यही है कि प्रिंसिपल तो वो है जिनका जिनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। एजेंट्स वो हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि उस कैपिटल को मैनेज कर रहे हैं। अब इन दोनों के इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं? देखिए, जो एजेंट्स हैं, एजेंसी कॉस्ट के टू फैक्टर हैं। दोनों के, एक तो ये भी हो सकता है कि उनके गोल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंस ना हो। एजेंट्स चाहते हो कि उनका इंटरेस्ट ज्यादा हाई हो, प्रिंसिपल चाहेंगे कि उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई मिले। इसी तरह प्रिंसिपल में हैव अ लेस देन परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिग्री टू विच द एजेंट इज परसुइंग। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। ये प्रिंसिपल और एजेंट की इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से भी ये हो सकता है कि प्रिंसिपल के बाद इंफॉर्मेशन कम होगी इन कंपैरिजन टू एजेंट्स, बिकॉज एजेंट्स आर running the organization, so they have a more information in comparison to the principals regarding that their organization. तो अब इसकी वजह से मैं कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जिसके अंदर प्रिंसिपल एजेंट से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और उसको हम देख सकते हैं। एंड हाउ कैन वी रिड्यूस द एजेंसी कॉस्ट? चूज कंट्रैक्टिंग स्कीम दैट अलाइंस एजेंट इंटरेस्ट विद द प्रिंसिपल इंटरेस्ट। अब हाउ कैन वी बेसिकली एड्रेस दैट थिंग? आउटकम ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिहेवियरल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, शेयर आउटकम ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आर इन द फेवर ऑफ द प्रिंसिपल, बिकॉज व्हेन यू आर बेसिकली focusing on the outcome of the company, let's say in the case of the corporation, the profits. So you are making agents responsible for increasing those profit as well. Or if the profits will increase, then they will get more rewards. In that case of bonuses or perks or incentives. But agent try to have a behavioral based contract. They want to see that not everything is in their control in case of the outcomes in the organization. So they are focusing on the more behavioral based contracts, like that those contracts which basically have a certain kind of the fixed pay and focused on the behavioral component of the job performance. So that is basically there are different kind of a contracting scheme through which you can align the interest of the principal with the principal interest as well. आउटकम ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट और बिहेवियरल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ये कॉम्बिनेशन ये कर सकते हैं कि आउटकम ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनकी एक फिक्स सैलरी भी हो और कुछ एलिमेंट जो है वो आउटकम के ऊपर डिपेंड करता हो। इस केस में ये होगा कि फिक्स सैलरी उनको मिल रही होगी तो बिहेवियरल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट की भी कॉम्पोनेंट उसके अंदर एंटरटेन हो जाएगा, और अगर उनको आउटकम की बेस के ऊपर उनको सैलरी जो है उसकी वेरिएशन क्रिएट हो रही है, जो वेरिएंस है सैलरी का, वो आउटकम ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट से उसका एड्रेस हो जाएगा। तो इससे आप इनको देख सकते हैं। ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज? किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वो यूज करें? देखिए, इसके अंदर डिपेंड्स पार्टली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक है रिस्क अवर्जन। रिस्क अवर्जन अमंग सम एजेंट्स मेक आउटकम ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स लेस लाइकली। रिस्क जो एजेंट्स होंगे वो ज्यादा रिस्क अवर्सिव होंगे इन कंपैरिजन टू द प्रिंसिपल, इसलिए वो चाहेंगे कि बिहेवियरल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो। फिर आउटकम अनसर्टेनिटी। प्रॉफिट इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटकम। एजेंट्स आर लेस विलिंग टू हैव देयर पे लिंक टू द प्रॉफिट्स to the extent that there is a risk of low profit. They would therefore prefer a behavioral based contract as well. फिर job programmability. Job becomes less programmable, less routine work. Outcome oriented contract become more likely because monitoring becomes more difficult. अब डिपेंड करता है कितनी जॉब जो है प्रोग्रामेबल है। अगर ज्यादा प्रोग्रामेबल है, लेस प्रोग्रामेबल है, लेस रूटीन है, ज्यादा क्रिएटिव वर्क है, उस केस के अंदर आउटकम ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो ज्यादा बिकम मोर लाइकली, क्योंकि बिहेवियरल को फिर कॉन्ट्रैक्ट को उसका मॉनिटर करना जो है डिफिकल्ट होगा। देन मेजरेबल जॉब आउटकम्स। आउटकम्स अगर ज्यादा मेजरेबल है तो आउटकम ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोर हाईली applicable in that regard. Ability to pay outcome oriented contract contribute to higher compensation cost because of the risk premium.
then the tradition or custom of using or not using an outcome-oriented contract will make such contracts more or less likely. So, Bharat, if we are going to summarize that thing, the reinforcement theory, expectancy theory, and agency theory, they are all focusing on the fact that the behavior reward contingencies in pay for performance programs can shape behavior. तो अगर आपके जो बिहेवियर रिवॉर्ड की जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स हैं, वो आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स हैं वो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एजेंसी थ्योरी के बारे से देखें तो दे बेसिकली गिव अ पर्टिकुलर वैल्यू इन कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ इट्स एम्फोसिस ऑन द रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ्स that needs more close attention when companies consider variable pay plans which can carry a significant risk. तो अगर वेरिएबल पे प्लान है, अगर फिक्स पे प्लान के अंदर तो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा एजेंसी थ्योरी का, लेकिन एजेंसी थ्योरी का ज्यादा इन्फ्लुएंस तब होगा जब दे हैव द वेरिएबल पे प्लान. So then the agency theory can basically have an influence regarding determining that what component of the pay is going to be variable in the organization. Then another question, how do pay sorting effects influence labor force composition? अब सॉर्टिंग इफेक्ट है क्या? देखिए, सॉर्टिंग इफेक्ट ये है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पे फॉर परफॉर्मेंस को एम्फोसाइज करती है, इंडिविजुअल एफर्ट्स को ज्यादा एम्फोसाइज करती है, तो उस तरह के लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टीम वर्क को ज्यादा एम्फोसाइज करती है, ग्रुप रिवॉर्ड्स को ज्यादा एम्फोसाइज करती है और इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स को लेस एम्फोसाइज करती है, तो फिर ग्रुप और टीम में जो लोग ओरिएंटेशन रखते हैं काम करने के वाले थे वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे. So that is basically your compensation, your pay programs affect the kind of the people which you are attracting in your organization as well. तो जो लोग इंडिविजुअलाइज एफर्ट को और पे फॉर परफॉर्मेंस पर ज्यादा काम करना चाहते हैं, तो वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेड्स एंड वैल्यूज के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं. जो लोग ग्रुप्स के अंदर, टीम्स के अंदर काम करना चाहते हैं, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेड्स एंड वैल्यूज रखते हैं. तो उसके हवाले से जिस आप मुख्तलिफ कल्चर में देखते हैं, यूएस के कल्चर में आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा इंडिविजुअल फैक्टर नजर आते हैं, जापानीज कल्चर में देखते हैं तो वहाँ ज़्यादा आपको जॉइंट और ग्रुप फैक्टर नजर आते हैं. तो ये एक बुनियादी फर्क आपको नजर आएगा. सॉर्टिंग इफेक्ट का मतलब यही है कि आप जो है सॉर्टिंग, दिस इज वर्क कॉम्पोजिशन is sometimes referred to the different kind of personality traits and values in the organization. तो जो पे प्लान है वो अफेक्ट करता है कॉम्पोजिशन ऑफ द करंट वर्कफोर्स को, the kind of the employees which are attracted and the kind of employees which are retained in the organization. Then let's talk about pay for performance program and differentiation in performance and the pay. Many organizations actually use pay to differentiate between employees. That create a certain kind of a dispersion in that regard based on their performance, especially in the jobs and especially in the higher level jobs. देखें, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो लोग ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनको बेहतर पे मिले, और जो लोग ऐसी वाइस वर्सा देखा जाए अगर बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनकी पे भी कम हो. तो इसको हम कहते हैं पे डिस्पर्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस. और कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जिसके अंदर जो लोग बहुत हाई परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े हाई प्रॉफिट अर्न भी करते हैं. और तो इसलिए आपको दैट इक्विटेबल लगता है कि ऐसे लोगों को हाईली पे किया जाए, कि जिनकी वजह से ज़्यादा अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिल रहे हैं तो उनको पे भी हाई किया जाए. कुछ जगहों के ऊपर ये भी है कि आप इस तरह करने से लोग जो है इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ग्रुप के अंदर काम करना कम चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ग्रुप के साथ कोऑपरेट करने के से बेहतर है कि वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाएं जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको पे मिलेगी और जिसकी बुनियाद पर उनको बोनसेस मिलेंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर इंसेंटिव मिलेंगे. तो ये भी एक फैक्टर इसका है. और 12 दैट डिपेंड्स अपॉन द जॉब एज वेल, कि किस तरह की जॉब है, जॉब की नेचर को किस तरह आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, किस तरह उसको उसके आउटपुट को क्वांटिफाई कर सकते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकें. Then there's the key decision in designing pay for performance plan concern incentive intensity. So what do we mean in incentive intensity? The strength of the relationship between performance and pay.
हाउ कैन बी स्ट्रांगली डिफरेंशिएट इन परफॉर्मेंस एंड पे। तो अगर आप लेट से अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं 20% से, तो क्या आपकी इसी परसेंटेज से आपकी सैलरी भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी? द लार्जर द चेंज इन द पे, द स्ट्रॉन्गर द इंसेंटिव इंटेंसिटी। यहाँ ऑब्जेक्टिव बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड आउटकम की एवेल्युएशन हो सकती है, और उसकी बेस के ऊपर अगर उनकी पे का डिफरेंशियल क्रिएट हो सकता है, तो वहां आपको ये इंसेंटिव इंटेंसिटी स्ट्रांग नजर आएगी। और अगर ऐसा करना मुश्किल है, अगर सब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना, जितना ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है, अकाउंटिंग का फंक्शन है, जहाँ बिहेवियरल बेस्ड जो है वो आउटकम लाना है, इस केस के अंदर आपकी जो इंसेंटिव इंटेंसिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कम हो जाएगी। सेल्स की जॉब है, मार्केटिंग की जॉब है, जहाँ आउटपुट या प्रोडक्शन की जॉब है, जहाँ आउटपुट ओरिएंटेशन स्ट्रांग है, जहाँ क्वांटिफाइबल हो सकते हैं, वहाँ इंसेंटिव इंटेंसिटी जो है वो हाई होती है। ये एक इसके कुछ इंसेंटिव भी हैं। फिर हम ये देख लेते हैं, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ पे फॉर परफॉर्मेंस। किस तरह के टाइप्स हो सकती हैं पे फॉर परफॉर्मेंस के हवाले से? There are different kind of the pay for performance. We can give an overview regarding that thing. Pay program differs on whether payout become part of the base pay or fixed cost or are the variable. पहली बात कि आप ये देखेंगे, जो पे फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम है वो एज अ बेस पे बनेंगे या फिक्स कॉस्ट बनेंगे। वेदर द प्रोग्राम measure performance using subjective or objective performance measures, और थर्ड इज वेदर परफॉर्मेंस इज measured on individual और ऑर्गेनाइजेशन लेवल। कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोग्राम में वर्क बेस्ट। आप इन्हीं कॉम्बिनेशन की बुनियाद के ऊपर प्रोग्राम बना सकते हैं कि किस तरह का पे फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन कर सकती है। तो आपके सामने ये प्रोग्राम फॉर रिकग्नाइजिंग एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोग्राम। मेरिट पे, मेरिट बोनस, इंसेंटिव पे, प्रॉफिट शेयरिंग, stock ownership, stock options, gain sharing, and scale based. There are different kind of design feature, and there are different kind of the variables of design features of this different kind of the pay program on which you can compare these different kind of the pay programs. Fixed परफॉर्मेंस मैयर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मैयर, इंडिविजुअल और कलेक्टिव। जो मैंने आपसे पहले तीन बातें कही, ये फिक्स्ड होगी या वेरिएबल पे होगी, परफॉर्मेंस मैयर सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, या परफॉर्मेंस मैयर इंडिविजुअल होंगे या कलेक्टिव होंगे। तो इनकी बुनियाद के ऊपर ये बात हो सकती है। ओके जी। अब हम मेरिट पे एंड मेरिट बोनसेस के वाले से बात कर लेते हैं। जो ट्रेडिशनल मेरिट पे प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर नॉर्मली जो होती है वो एनुअल बेस पे इंक्रीजेस होती हैं, आर यूजुअली लिंक टू द परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग। या आपका जो भी एनुअल एवेल्यूशन फॉर्म होगा उसके मुताबिक आपकी मेरिट के ऊपर आपकी जो भी आपकी स्कोरिंग होगी उसके ऊपर आपकी पे को जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। Some cases employees have moved toward a form of merit pay that relies on bonuses rather than increase to their base pay as well. अच्छा जी, मेरिट बोनस जो है वो वेरिएबल पे है, इट इज एबिलिटी टू डिफाइन एंड रिवॉर्ड अ ब्रॉड रेंज ऑफ परफॉर्मेंस डायमेंशन। अब मेरिट बोनस जो है, मेरिट पे का मतलब है आपकी बेस पे में इंक्रीज किया जा रहा है, मेरिट बोनस का मतलब है कि कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसमें आपकी परफॉर्मेंस को देखकर आपको जो है एनुअली बोनस दिया जा रहा है, लेकिन दोनों बेस कर रही है आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के ऊपर। अब क्या किन चीज़ों के ऊपर मेरिट बेस कर सकता है, जितना आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग है, जो परफॉर्मेंस के डायमेंशन क्या हो सकते हैं कि दैट यू नो योर जॉब, taking initiative, exceed good judgment, inspire and develop other, demonstrate interpersonal teaming skills, produce results। तो ये मुख्तलिफ किस्म का आप एक मेरिट का एक ग्रेड भी बना सकते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को एवेल्युएट किया जा सकता है। मेरिट इंक्रीज ग्रेड बेस्ड ऑन द थ्री फैक्टर्स: परफॉर्मेंस रेटिंग, कॉम्पर रेशो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग। इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्मेंस रेटिंग के डायमेंशन तो मैंने आपको बताया, सैंपल परफॉर्मेंस डायमेंशन जैसा नोज जॉब, takes initiative, exercise good judgment, inspire and develop others, demonstrate interpersonal teaming skill and produce results. Recommended salary increase performance rating and compa ratio। अच्छा, compa ratio का मतलब ये है कि एम्प्लॉय की सैलरी और मिड पॉइंट ऑफ देयर सैलरी रेंज। अब अगर कॉम्पा रेशो 80 to 90% है और दैट पर्सन इज एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन, तो उसकी सैलरी को 7% इंक्रीज किया जा रहा है। अगर कॉम्पा रेशो 91 to 100% है तो उसकी सैलरी 5% इंक्रीज हो रही है। अगर कॉम्पा रेशो 111 to 120% है तो उसकी सैलरी 3% इंक्रीज हो रही है। देखिए, इसका बुनियादी मकसद क्या है? तीन एम्प्लॉयज हैं लेकिन उनकी कॉम्पा रेशो मुख्तलिफ है। एक एम्प्लॉयज को ओवरऑल मिड पॉइंट से 20% ज्यादा मिल रहे हैं, तो अगर आप उसकी सैलरी 7% इंक्रीज कर देंगे तो उसकी और ये है कॉम्पा रेशो जो इंक्रीज कर जाएगी। और जो परसेप्शन अबाउट
और वो हो सकता है कि अपनी वो सैलरी रेंज से बाहर निकल जाए जिस ग्रेड में वो फॉल करता है। इसलिए जब आपकी इसमें एम्प्लॉय की कॉम्पर रेशो हाई है तो उसका जो सैलरी रेज है वो कम है। इसी तरह जिनकी कॉम्पर रेशो पहले ही कम है उनका सैलरी रेज ज्यादा है, ताकि वो उस अपनी सैलरी रेंज में रहे और उसकी कॉम्पर रेशो जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो इसलिए कॉम्पर रेशो को जो है इंक्लूड करके जब आप सैलरी को इंक्रीज करते हैं तो फिर आप सेम परसेंटेज हर एक पे अप्लाई नहीं करते कि सब लोगों की 10%। देखिए, सब लोगों की 10% इंक्रीज करने में जिसको सैलरी पहले ही ज्यादा मिल रही है उस केस में उनकी सैलरी उस सैलरी रेंज से निकल जाएगी, इसलिए कॉम्पर रेशो को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ओके जी, कॉम्पर रेशो टारगेट्स इस हवाले से एक्सीड एक्सपेक्टेशन, मीट्स एक्सपेक्टेशन, बिलो एक्सपेक्टेशन। ओके, अब हम कुछ बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल मेरिट पे प्रोग्राम के हवाले से बात कर लेते हैं। और उसमें किस तरह के मामला जो हैं वो हमें देखने पड़ते हैं। Identify individual differences in performance which are assumed to reflect differences in ability or motivation। पहली बात तो ट्रेडिशनल मेरिट पे प्रोग्राम जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है, दैट रिफ्लेक्ट इन देयर एबिलिटी और मोटिवेशन। ज्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो इमीडिएट सुपरवाइजर से कलेक्ट की जाती है। पॉलिसी ऑफ लिंकिंग पे इंक्रीजेस टू परफॉर्मेंस अप्रेजल रिजल्ट है इसमें। तो अगर आप पे को इंक्रीज लिंक कर देते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होगा उसकी सिग्निफिकेंस भी इंक्रीज हो जाती है। Feedback tends to occur infrequently, often once per year at formal performance review sessions, and flow of feedback tend to be unidirectional from supervisor to subordinate. It's not from subordinate to supervisor. Normally जो इस केस के अंदर जो evaluation हो रही है वो supervisor कर रहा है, साल में एक दफा कर रहा है, और उस evaluation फॉर्म के साथ लिंक कर रहा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेडिशनल मेरिट पे प्रोग्राम के हवाले से। क्रिटिसिज्म क्या है इसके हवाले से, मेरिट पे और मेरिट बोनसेस के हवाले से। Unfair to rate individual performance because differences arise from the system, not from themselves। अच्छा, ये क्रिटिक है इसके हवाले से कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं इंडिविजुअल के सिस्टम की वजह से। हो सकता है सिस्टम के अंदर एक ऐसी चीजें हो जो कि इंडिविजुअल की कंट्रोल में ना हो, इंडिविजुअल के इन्फ्लुएंस में ना हो, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस के जो है वो डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट हो रहा हो। तो factor हो सकते हैं। तो हो सकता है वो नहीं समझे कि हमारा जो एम्प्लॉई जो सुपरवाइजर है वो हमारी परफॉर्मेंस के सारे एस्पेक्ट नहीं देख पा रहा, हमारी परफॉर्मेंस को ट्रूली एवेलुएट नहीं किया जा रहा। और तो ये होता है। और फैक्टर हो सकते हैं। अच्छा, डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग, he was a leader of the total quality management program. He argued it's unfair to rate individual performance because apparent differences between people arise almost entirely from the system they work in, not from the people themselves। और किस तरह के सिस्टम फैक्टर इंक्लूड किए जा सकते हैं, जैसा को वर्कर है, जॉब है, मटेरियल्स है, इक्विपमेंट है, कस्टमर्स है, मैनेजमेंट है, सुपरविजन है, एनवायरमेंटल कंडीशन है। उसको लगता था ये सारी चीजें वर्कर के कंट्रोल से बाहर हैं और ये चीजें आपके परफॉर्मेंस को जो है इन्फ्लुएंस कर देती हैं। तो Deming argued that the performance rating is essentially the result of a lottery. Although it may be true for some jobs, for others, there can be major differences in individual performance as well, like salespeople, like managers, like athletes, like investment bankers, attorney, and consultant। Deming argued that the individual focus on the merit pay discourage the teamwork as well। Everyone people himself, everyone propels himself forward or tries to for his own good on his own life preserve। The organization is the loser। लोग जो हैं उनका ज्यादा इंटरेस्ट इस बात पे है कि वो अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द डेमिंग। और डेमिंग का सोल्यूशन ये था टू एलिमिनेट द लिंक बिटवीन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड पे। दिस अप्रोच रिफ्लेक्टेड डिजायर टू मूव अवे फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। कुछ लोगों के लिए देखिए, अगर ये पॉसिबल हो भी सकता है कि कुछ लोगों के लिए अच्छा हो कि वो समझे कि हमें टीम वर्क को इनकरेज किया जा रहा है और हमें उसके अंदर ग्रुप के अंदर एवेल्यूट किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर हो जो बेहतर परफॉर्म करना चाह रहे हो, उनके लिए डीमोटिवेटिंग भी हो सकता है। बहरहाल ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आ, लेकिन बहरहाल आपको, इसलिए लोग हाइब्रिड परफॉर्मेंस प्रोग्राम के साथ आते हैं जिसके अंदर इंडिविजुअल फैक्टर और ग्रुप फैक्टर दोनों को कंसिडर किया जाता है।
Individual focus on merit pay discourage the teamwork. If performance measure is not perceived as fair and accurate, the entire pay program can be break down. Merit pay does not really exist. It's a kind of a accumulation effect. तो बहरहाल इसके अंदर ये फैक्टर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं कि ये ऐसा क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर कि मेरिट पे के ऊपर एक्चुअली जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ ए accumulation of the previous performances which result into that kind of evaluation and the evaluation and the performance appraisal program are not able to measure the exact uh, performance of the true performance of the employee in the organization. ये इस पे क्रिटिसिज्म भी है और इस हवाले से बात भी की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि क्या चीजें जो है वो इसके हवाले से इफेक्ट कर सकती है। बहरहाल इसके हल के हवाले से ये देखा जा सकता है कि अगर सुपरवाइजर के हवाले से देखा जाए तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस फीडबैक कैन बी इंट्रोड्यूस्ड और तो वो आप मल्टीपल लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर लेते हैं और इसके हवाले से बात हो सकती है इंडिविजुअल इंसेंटिव और ग्रुप इंसेंटिव को दोनों को हाइब्रिड सिस्टम के अंदर लेकर आया जाए ताकि दोनों सिस्टम को साथ लेकर आया जाए। इसका भी आ सकता है इफेक्ट आ सकता है ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर। Example, the procedural justice in merit pay decision. Employee believe that in evaluating their performance, their supervisor was honest and ethical and tried to be fair, considered your input, used consistent standard, provided feedback, took the time to become familiar with your role and performance, and including factors beyond your control. And after a merit pay decision was made, was receptive to discussion of how the decision was made and or an appeal and working together to develop an action plan going forward. These are examples of procedural justice in the merit pay degree. व्हाट डू वी मीन प्रोसीजर जस्टिस क्या जो कि आपका मैनेजर है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए से जो है वो आपको एवेल्युएट कर रहा है और उस प्रोसीजर में आपकी वॉइस को भी कंसिडर किया जा रहा है और उस प्रोसीजर के अंदर जो है वो उसको ट्रांसपेरेंट रखा जा रहा है ताकि एम्प्लॉयज को ये मालूम हो कि हाउ दे हैव बीन एवेल्युएटेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। There are different kind of the pay for performance program. One is about the individual incentive payments, not rolled on the base pay, continuously earned and re-earned. That means that the performance pay is basically based on the individual performance. It is basically earned as a, it is not being part of the base pay. It has become the depending upon the performance, and it has become the it is like a incentive for the employees to earn that extra pay. Performance usually measured as physical output rather than by subjective rating और तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जिस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस नंबर ऑफ सेल्स ये सारी वो रेटिंग्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव रेटिंग है और जहाँ जिन जॉब्स को ज़्यादा बेहतर जिनका ऑब्जेक्टिव आउटपुट होते हैं तो उनको उनके ऊपर इंडिविजुअल इंसेंटिव को अप्लाई करना जो है वो ज्यादा आसान है इस हवाले से। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान के जो है कुछ पोटेंशियल एडवांटेज डेफिनेटली हैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं तो बहरहाल इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हो सकते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड को यूज किया जा सकता है परफॉर्मेंस रेटिंग के हवाले से कुछ जगहों के ऊपर जिस तरह हम कुछ स्टैंडर्ड बना सकते हैं जहां ऑब्जेक्टिव रेटिंग ना हो जिस तरह मेंटेनिंग एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के हवाले से बनाए जा सकते हैं। तो बहरहाल एम्प्लॉयज को मोटिवेट होते हैं कि वी आर गेटिंग पेड फॉर व्हाट वी आर डूइंग और उनको ये भी लगता है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा तो वी आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा और तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इस हवाले से। बहरहाल इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ उसके इफेक्ट्स भी हैं नेगेटिव इफेक्ट्स भी लोग कंसिडर करते हैं कि ये टीम वर्क के हवाले से डीमोटिवेट करता है अंडरमाइन इसके कोई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि लोग गेमिंग करें
ताकि उनके आउटपुट जो है वो अच्छे महसूस हो लोगों को, और उससे क्योंकि आउटपुट के ऊपर फोकस रहता है तो लोगों की लेस कॉपरेशन हो जाती है लोगों के साथ। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस भी है। अच्छा, कुछ ग्रुप प्लान्स हैं, जिस तरह ग्रुप पे फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स है, प्रॉफिट शेयरिंग एंड ओनरशिप के हवाले से। प्रॉफिट शेयरिंग जो है एंड ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप कॉन्टिन्यूम और प्रॉफिट शेयरिंग एंड स्टॉक ओनरशिप प्लान्स है। Under profit sharing, payments are based on a measure of organization performance, a profit, and the payments do not become part of their base salary. Profit sharing has two potential advantages. First of all, it may encourage employee to think more like an owner, taking a broad view of what needs to be done to make the organization more effective. And second, labor costs are automatically reduced during difficult economic times and wealth is shared during good times. These are the two advantages. What are the disadvantages? Most employees are unlikely to see strong connection between what they do and what they earn. And most plans are a deferred type of plan. Deferred type of the plan that you are getting your reward once organization announce their profits. And normally they announce their profit after an year. So if you are making an effort right now, so you are getting your rewards after an year. So this is the one disadvantage, and some people consider that if we are performing right now and we are getting a reward of that performance, if the organization overall profit is high, and there are multiple factors which are contributing into the overall profits of the organization. So sometimes some people may discourage due to this kind of the plans as well. तो बहरहाल ये कुछ फैक्टर हैं जो कि मोटिवेशनल इफेक्ट के हवाले से प्रॉफिट शेयरिंग प्लान को जब आप डिजाइन करें तो उसके अंदर कंसिडर किए जा सकते हैं। Profit sharing may be useful as a one component of the compensation system. It may need to be complemented with other pay programs as well, which link the pay to the outcome that individual or teams can control, particularly in the large organization. In addition, profit sharing runs the risk of contributing to employee dissatisfaction or higher labor costs depending on how it is designed. However, moving beyond concerns about its motivational impact, profit sharing does have the major advantage of making labor cost more variable, a major advantage when saved and the profit are declining for the organization. तो बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट भी है इसका, लेकिन एम्प्लॉय के एंड के ऊपर इसका मोटिवेशन इफेक्ट भी डिफरेंट हो सकता है, डिसएडवांटेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको जब आप डिजाइन करें, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करें। प्रॉफिट शेयरिंग एंड ओनरशिप, एम्प्लॉय ओनरशिप के हवाले से दैट इंक्लूड द स्टॉक ऑप्शन एज वेल। एम्प्लॉय ओनरशिप is similar to the profit sharing in some key aspects, such as encouraging employees to focus on the success of organization as a whole. In fact, with ownership, this focus may be even more stronger. Like profit sharing, ownership may be less motivational the larger the organization, because employees may not realize any financial gain until they actually sell their stocks. And sometimes they sell their stock after when they are leaving the organization. So there are two options in that regard. One way of achieving employee ownership is through stock option, and which gives the employee the opportunity to buy a stock at the fixed price. Say the employee receive option to purchase stock at 10 rupees in 2016, और उसकी आप एक स्टॉक को आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप 2000 लेट्स से 2024 में उसकी आप कहते हैं 10 रुपीज में आप उसको खरीद सकते हैं। अब आप जब 2027 में कहते हैं कि जी अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप ये इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं जो कि उसकी प्रीवियस प्राइस। अब 2027 में हो सकता है उसकी प्राइस 30 रुपीज, तो अगर आप प्रीवियस प्राइस की जो ऑप्शन आपको मिली थी कि आप 10 रुपीज में उसको बाय कर सकते हैं, तो 10 रुपीज में आप उसको बाय करके जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपको लिमिट दी है और फिर उसको 30 रुपीज में सेल आउट कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर वो स्टॉक प्राइस रिड्यूस हो जाए, मतलब लेट से आपने 2027 में बजाय कि वो 10 रुपीज की होती है वो 8 रुपीज की हो जाएगी, तो फिर आपको इसमें लॉस हो सकता है, एम्प्लॉयज को इस केस में लॉस भी हो सकता है। तो ये स्टॉक ऑप्शन इस केस में है। बार ऐसी कुछ कंपनीज ने इसके, बहुत सारी कंपनी ये काम करती हैं कि स्टॉक ऑप्शन क्रिएट करती हैं एम्प्लॉयज के लिए कि वो स्टॉक्स को पुरानी प्राइस पर खरीद कर नई प्राइस के ऊपर बेच सकते हैं। लेकिन इसमें ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि नई प्राइस जो है वो पुरानी प्राइस से जो है वो कम हो। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। अच्छा जी, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान under which employers give employees stock in the company are the most common form of the employee ownership, with the number of employee in such plan increasing from
4 million in 1980 to about 14 million in 2017 in यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में इस ऑप्शन को बहुत एक्सरसाइज किया जाता है कि आप एक्चुअल ओनरशिप दे देते हैं, उनको स्टॉक्स दे देते हैं, और ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के प्लान है इसमें, स्टॉक परचेजेस हैं, स्टॉक बेस्ड रिटायरमेंट प्लान हैं। तो बहरहाल इसको काफी ज्यादा एक्सरसाइज किया जाता है डेवलप्ड कंट्री में, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान अट्रैक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इसके कुछ टैक्स एंड फाइनेंसिंग एडवांटेजेस भी हैं। और दूसरी ये बात है कि ओनरशिप इंक्रीज कर देती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के हवाले से, कि नाउ दे आर have those kind of stocks, they are more motivated to increase the profit of the company, to increase the price of the stock in the organization as well. तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। तो मैनेजर्स को और फिर प्रिंसिपल एजेंट की जो कि प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान के हवाले से एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, ये फिर पे फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स हैं जिसमें गेन शेयरिंग है, ग्रुप इंसेंटिव है, टीम अवार्ड्स हैं। अच्छा, गेन शेयरिंग प्रोग्राम का मतलब है दैट यू आर शेयरिंग अ प्रोडक्टिविटी गेन विद एम्प्लॉय। कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के साथ। प्रॉफिट शेयरिंग, गेन शेयरिंग जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग से in the two aspects it's different. First of all, using an organization level performance measure like in a profit, in the program measure group or the plant performance, which is likely to be seen as a more controllable by the employee. Second, payouts are distributed more frequently and not deferred in the case of the profit as well. In a sense, gain sharing program represent an effort to combine the best feature of organization oriented plans like profit sharing and individual oriented plans like a merit paid individual incentive. So, like a profit sharing, gain sharing also encourages pursuits of the broader goal than individual oriented plans. But unlike profit sharing, gain sharing can motivate employees such as individual plans too, because the more controllable nature of the performance measures and the frequency of the payouts. Studies indicate that the gain sharing improve the performance as well. बहरहाल इसका फायदा ये है कि आप देखिए एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी के जो गेन्स मिल रहे हैं ना, उसकी बुनियाद के ऊपर आप उनके साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो ग्रुप वर्क भी हो रहा है और प्लस ये भी है कि उनको इंडिविजुअल उनकी कंट्रीब्यूशन को रिवॉर्ड भी फौरी तौर पे किया जा रहा है। उस केस में उतना डेफर नहीं किया जा रहा है कि साल के एंड में जब प्रॉफिट अनाउंस होंगे तभी उनको शेयरिंग होगी। इसके अलावा इसमें एक प्लान है साइक्लोन प्लान, डेवलप्ड बाय जोसेफ साइक्लोन इन 1930। वो प्रेसिडेंट ऑफ लोकल यूनियन एट एम्पायर स्टील था। उसने कहा मॉनेटरी बोनस एम्प्लॉयज को मिलेगा। लेट्स से अगर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इस किसी इक्विपमेंट को बनाने के हवाले से 1 मिलियन है, और एम्प्लॉयज जो है उसकी प्रोडक्ट एक्चुअल कॉस्ट जो आती है वो लेट्स से 8 मिलियन आती है, तो 2 मिलियन का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बेनिफिट हो जाता है। अब इस 2 मिलियन की कॉन्ट्रीब्यूशन को आप डिवाइड कर सकते हैं। 55% आप मैनेजर्स के पास चली जाती है, बात ओनर्स के पास चली जाती है, और बाकी 45% उस ग्रुप को दे दिया जाता है जो कि उस प्रोडक्शन के लिए दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। That's a one kind of a cyclone plan where you are basically having a some percentages for the labor and the team who are responsible for that production and the owners। तो उसके दरमियान जो कि उन्होंने उसकी प्रोडक्टिविटी कॉस्ट को जो रिड्यूस किया, उस रिडक्शन की जो कि अमाउंट है, उस अमाउंट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच हैव बीन इंक्लूडेड इन द गेन शेयरिंग, और इसमें there are many factors which can basically help the organization to succeed the gain sharing plan in the organization. Commonly mentioned factors include the management commitment, a strong need to change, and commitment to continuous improvement, management acceptance and encouragement of the employees input, high level of cooperation and interaction, employment security, information sharing on productivity and stocks, goal setting, commitment of all involved parties to the process of the change and improvement, agreement on performance standard and calculation that is understandable, seen as fair and closely related to the मैनेजेरियल ऑब्जेक्टिव। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि कंसिडर करने पड़ते हैं जब आप गेन शेयरिंग प्लान को डेवलप कर रहे हैं। अगर गेन शेयरिंग प्लान को आप सक्सेसफुल करना चाहते हो तो दीज फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द गेन शेयरिंग। फिर देयर आर ग्रुप इंसेंटिव एंड द टीम रिवॉर्ड्स एज वेल। ज्यादातर गेन शेयरिंग प्लान जो है वो प्लांट्स के ऊपर या फिर प्लांट से बनाते हैं कि फैक्ट्रीज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, और ग्रुप इंसेंटिव जो कि इंडिविजुअल इंसेंटिव की तरह है वो फिजिकल आउटपुट को मेजर करते हैं, जहां टीम को रिवॉर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस मेजर्स। अपने कॉस्ट सेविंग है, कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट डिजाइन है, मीटिंग डेडलाइंस है। तो रादर देन हैविंग
जो पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस हैं फॉर द इंडिविजुअल इंसेंटिव, तो वो टीम इंसेंटिव और ग्रुप इंसेंटिव के जरिए से उनको एड्रेस किया जाता है कि टीम इज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ द आउटपुट एंड द एवरी मेंबर इन द टीम इज गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स। तो ये इस हवाले से बात की जा सकती है ग्रुप इंसेंटिव और टीम इंसेंटिव के हवाले से। ओके जी। देन द बैलेंस स्कोर कार्ड दैट यूज अ मिक्स ऑफ द पे प्रोग्राम टू बैलेंस द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। और उसके अंदर क्या चीजें बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर आप कंसिडर करते हैं? First of all, there are different kind of the measures for the performance measure in the balance scorecard: financial, customer, internal, learning and growth. Financial तो मुराद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब अगर टारगेट इंसेंटिव $100 था तो आपने कितना इंसेंटिव जो है वो अचीव किया है इस हवाले से। परफॉर्मेंस जो है वो किस लेवल के ऊपर हुई, अगर परफॉर्मेंस लेट से $150 की हुई तो इसका मतलब आपने 50 प्लस किया। अगर परफॉर्मेंस $100 की हुई तो आपने यू आर मीटिंग द एक्सपेक्टेशन, अगर नीचे की तरफ चलेगी तो यू आर बिलो द एक्सपेक्टेशन। इस तरह कस्टमर के हवाले से देखा जाए कस्टमर का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन किस लेवल के ऊपर रहा, प्रोडक्ट जो है वो कितने वापस आए, कितने जो है वो सक्सेसफुल रहे, कस्टमर ने उसका सेटिस्फाइड रहे। फिर इंटरनल के हवाले से साइकिल टाइम रिडक्शन। साइकिल टाइम इज द टाइम बट द कंपनी इज टेकिंग टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट और सर्विस, कितना टाइम वो लेती है उस प्रोडक्ट को बनाने के हवाले से, दैट व्हाट वी कॉल द साइकिल टाइम। तो अगर साइकिल टाइम जो है वो आपका जो है उसके परफॉर्मेंस के क्या बेसिकली टाइम था और किस टाइम के अंदर हमने उन्होंने एक्चुअली क्या परफॉर्म किया, अबव चले गए या बिलो रहे, इस हवाले से। एंड लर्निंग एंड ग्रोथ वॉलेंट्री, इसमें लर्निंग एंड ग्रोथ के हवाले से हम देख सकते हैं कि एक डायमेंशन होता है वॉलेंट्री एम्प्लॉय टर्नओवर, कितने लोग इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। अगर लेस देन 5% है, लेस देन 10% है, लेस देन 15% है, ये मुख्तलिफ किस्म के मैयर ले सकते हैं, जैसे आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉय का कितना फोकस है, कितना कमिटेड है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ। So now you have a four dimensions through which you are basically measuring the performance in the organization. One is financial, another is customer, third is internal, and fourth is learning and growth. Okay, जी. Now let's talk about the managerial and executive phase. Uh, because manager can significantly influence the organization performance. So that's why we're considering that how we are going to pay the top manager and executive. It's very strategically important that how you are paying your top manager and the executive in the organization. How their pay is going to determine. So there are various ways through which they are determining the pay of the executives. First of all, there's few points which I'm going to consider in the agency theory perspective. Goal of owner, what are the goals of the shareholder, is to encourage the agents, manager, and executive to act in the best interest of the owners. More emphasis on outcome-oriented contract that makes some portion of executive pay contingent on organization profitability or stock performance. So in that regard, balance scorecard is very necessary because balance scorecard is not measuring only the financials, but they are also measuring the other dimensions of the performance in the organization as well. So that gives a broader view of performance in the organization rather than focusing just on financials of the organization. Organization can use pay for performance plan, but what are their consequences? They can have a long-term focus, they can have the short-term focus. If they have the short-term focus, then the organization, then the managers are using a different kind of the way through increase the profits. And that can basically have certain kind of ethical implications in the organization as well. Balance scorecard is a more balanced approach for compensating your manager and the executive in the organization. One can have a focus on the shareholder, which is the financial aspect. Another focus is the customer. Then we have a focus on the colleagues. Then we have a focus on the strategic imperatives. Internally, functions कैसे उनके हैं, कस्टमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, एम्प्लॉयज का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, और फिर उनके फाइनेंशियल क्या है। तो ये एक